ٹی وی اور عذاب قبر کیسٹ کی کامیابی کے بعد سونک انٹرپرائزز اب پیش کرتے ہیں کیسٹ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، السلام علیکم۔ موت کے بعد سے قیامت قائم ہونے تک ہر شخص پر جو زمانہ گزرتا ہے اس کو برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کے لغوی معنی پردہ اور آڑ کے ہیں۔ چونکہ یہ زمانہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک آڑ ہوتا ہے، اس لیے اسے برزخ کہتے ہیں۔ حضرات گرامی، آخرت کی مراجعت کے وقت سب سے پہلے آپ کو ملک الموت سے ملنا ہے، اور ملک الموت کے معنی ہے موت کا فرشتہ۔ ان کا نام حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے۔ موت بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب موت کو پیدا کیا تو اس کے سامنے 10 لاکھ پردے ڈال دیے، اور ہر پردے کا طول و عرض زمین و آسمان سے کہیں بڑا ہے۔ موت کی جسامت کا حال اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر تمام دنیا کے دریاؤں اور نہروں کا پانی اس کے سر پر ڈالا جائے تو ایک قطرہ پانی زمین پر نہ گرے، اور ساری کائنات اس کے سامنے ایسی رکھی ہوئی ہے جیسے کسی شخص کے قدموں میں کوئی چھوٹی سی تھالی رکھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو جب موت پر مسلط فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، خداوند، موت کیا چیز ہے؟ پروردگار عالم نے موت کے سامنے سے سارے پردے ہٹا دیے اور فرشتوں کو حکم ہوا، آؤ تم سب موت کو دیکھ لو۔ فرشتوں نے جب موت کا نظارہ کیا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ان کو ہوش آیا تو پوچھا، الہی کیا موت سے بھی بڑی کوئی چیز دنیا میں موجود ہے؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موت کو میں نے پیدا کیا، موت سے بڑا میں ہوں اور مجھ سے بڑا کوئی نہیں، اور دنیا میں جتنی مخلوق میں نے پیدا کی ہے اس کا ایک بار موت سے ضرور واسطہ پڑے گا۔ حق تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی خصوصی طاقت سے حضرت عزرائیل نے موت کو پکڑ کر اپنے ہاتھ پر بٹھا لیا، اور اسی کے ذریعے وہ جانداروں کی روح قبض کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، اب ذرا ملک الموت کی شکل و صورت سے متعلق بھی سن لیجئے۔ روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خداوند عالم نے نبوت کی خلت سے نوازا تو خدا کے حکم سے ملک الموت بھی حضرت ابراہیم کو مبارکباد دینے آئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد ملک الموت سے پوچھا کہ مجھے یہ بتا دو کہ تم کافروں کی روح کس صورت سے قبض کرتے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ وہ خوفناک اور ہیبت ناک نظارہ آپ نہ دیکھ سکیں گے۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، مجھے تم دکھاؤ تو۔ ملک الموت نے کہا، اچھا ذرا منہ پھیر لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب منہ پھیر کر اس کی طرف دیکھا تو ایک سیاہ بادلوں والا ہیبت ناک اتنا لمبا آدمی نظر آیا جس کا سر آسمان سے لگا ہوا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے منہ سے آگ کے شعلے اور دھوئیں نکل رہے تھے، اور اس کے جسم کے مسامات سے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوفناک منظر دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو جب ہوش آیا تو دیکھا ملک الموت اپنی پہلی شکل و صورت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، اگر کافر کو اذیت اور سختی پیش نہ بھی آئے تو تمہاری یہ بھیانک اور ہیبت ناک صورت ہی اس کے لیے بڑا عذاب ہے، اور یہی اس کو کافی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب ذرا مومن کی قبض روح کا بھی نظارہ دکھا۔ ملک الموت کے کہنے پر آپ نے منہ پھیر کر دیکھا تو سامنے نہایت حسین اور خوبصورت اور خوش وضع اور بہترین ملبوس میں خوشبودار نوجوان بیٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اگر مومن کو کرامت اور بزرگی حاصل نہ بھی ہو تو تمہاری حسین و جمیل دل پذیر جاں فضا صورت ہی کافی ہے کہ یہ دیکھتے ہی روح اس پر فدا ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے دریافت فرمایا کہ اگر ایک آدمی مشرق میں ہو اور دوسرا مغرب میں ہو تو یہ عالم بہت وسیع اور کشادہ ہے، کہیں وبا پھیل رہی ہو اور کہیں جنگ ہو رہی ہو، ایسی صورت میں تم روح کے قبض کرنے کے فرائض کیسے انجام دیتے ہو؟ ملک الموت نے جواب دیا
کہ جب ایسے مواقع پیش ہوتے ہیں تو میں اللہ کے حکم سے ارواح کو بلاتا ہوں اور وہ میری 2 انگلیوں کے درمیان آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور میرے روبرو تمام زمین اس طرح سمٹ کر آ جاتی ہے جس طرح کسی آدمی کے سامنے تشت رکھ دی جائے اور وہ جو چیز چاہے اٹھا لے اور جسے چاہے چھوڑ دے۔ مجھے روح قبض کرنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں۔ روایت ہے کہ بعض انبیاء نے موت سے کہا کہ لوگوں کو تو اپنی آمد کی اطلاع پہلے سے کیوں نہیں دیتی؟ اس نے جواب دیا کہ میری آمد سے پہلے میرے قاصد میرا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ حادثات و انقلابات، بڑھاپا، بالوں کی سفیدی، بیماری، بصارت کی کمزوری وغیرہ میرے قاصد ہی تو ہیں، مگر لوگوں کو پھر بھی ہوش نہیں آتا اور وہ غفلت کے پردے میں رہتے ہیں۔ بھائی اور بہنوں، اب ذرا ملاحظہ کیجئے کہ ملک الموت کے معاونین کون کون ہیں۔ ربی بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی شخص نے پوچھا کہ کیا ملک الموت تنہا روح قبض کر لیتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ملک الموت کے بہت سے فرشتے معاون اور مددگار ہیں جن کو اللہ نے مقرر کر رکھا ہے اور وہی اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور ملک الموت ان سب فرشتوں کے افسر ہیں جن کی تیز رفتاری کا یہ عالم ہے کہ ان کا ایک قدم مشرق میں پڑتا ہے اور دوسرا قدم مغرب میں۔ ملک الموت کے ساتھ رحمت اور عذاب کے فرشتے رہتے ہیں۔ نیکوں کی روح قبض کر کے رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو چاروں طرف سے فرشتے گھیرے اور جکڑے رہتے ہیں۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو مرنے والے موت کی سختی اور شدت تکلیف سے جنگلوں میں بھاگے بھاگے پھرتے، اور نیک بندے کی میت پر فرشتے دعا اور استغفار اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کے متعلقین تکفین و تدفین سے فارغ نہیں ہو جاتے۔ اس طرح ملک الموت کے ساتھ بہت سے فرشتے رہتے ہیں۔ حضرت سلیمان نے ملک الموت سے پوچھا کہ تم لوگوں کے ساتھ انصاف کیوں نہیں کرتے؟ کسی کی روح تو فوری طور پر قبض کر لیتے ہو اور اسے جلد سے جلد تر اس دنیا سے منتقل کر دیتے ہو، اور کسی کو تکلیفوں اور اذیتوں میں اس طرح الجھاتے ہو کہ وہ لاچار اور مجبور پڑا تڑپا کرتا ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ یہ بات میرے قبضے اور اختیار میں نہیں ہے، ہر ایک کے نام کا ایک صحیفہ مجھے ملتا ہے، جیسا حکم ہوتا ہے بجا لاتا ہوں۔ روایت ہے کہ شعبان کے مہینے میں ملک الموت کو ایک کاغذ دیا جاتا ہے، اس میں ان تمام لوگوں کے نام لکھے رہتے ہیں جن کی روح قبض کرنے اس سال ان کے ذمے ہوتا ہے، مگر دنیا کے لوگ اپنی آرائش اور آسائش کے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ دولت کی فراہمی، مکان کی تعمیر، کھیتی باڑی، شادی بیاہ، غرض کے طرح طرح کی تیاریاں کرتے ہیں، اور وہ بالکل نہیں جانتے کہ اس سال ان سے دنیا چھوٹ جائے گی۔ حالانکہ ان کا نام ملک الموت کے کاغذ میں تحریر ہوتا ہے، اور ملک الموت روزانہ ہر مکان میں 3 مرتبہ اس لیے جاتے ہیں کہ جس شخص کی مدت پوری ہو چکی ہے اس کی روح قبض کر لی جائے۔ پس جب یہ کسی کی جان لیتے ہیں تو مرنے والے کے متعلقین رونا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس وقت ملک الموت دروازے کا بازو پکڑ کر کہتے ہیں کہ بخدا میں نے کوئی زیادتی نہیں کی، نہ میں نے اس کی روزی چھینی ہے اور نہ میں نے وقت سے پہلے اس کی روح قبض کی ہے۔ اس کا وقت پورا ہو چکا ہے، میں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا فرض ادا کیا۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو علم ہوگا کہ موت کا ایک دن معین ہے۔ جی ہاں، انسان کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، مقررہ وقت پر موت آ کے رہے گی۔ کسی صورت میں موت سے مفر نہیں، اور نہ کوئی تدبیر کارگر ہوگی، نہ کوئی طاقت روک سکے گی، اور نہ 1 منٹ کم و بیش ہو سکے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک بادشاہ زربفت فاخرہ اور قیمتی ملبوس میں ایک عمدہ اور عالیشان گھوڑے پر سوار ہو کر ایک لشکر عظیم کے ساتھ بڑے غرور سے نکلا۔ غرور و تکبر کا یہ عالم تھا
कि किसी तरफ देखता भी न था। मलकुल मौत एक फकीर की सूरत में फटे पुराने कपड़े पहने हुए नमूदार हुए और आकर सलाम किया। उस मगरूर बादशाह ने जवाब भी न दिया। मलकुल मौत ने उसके घोड़े की बाग पकड़ ली। उसने कहा, हट जा, मेरी राह में मुखिल ना हो। मलकुल मौत ने कहा, ऐ बादशाह, मुझे तो तुझसे कुछ कहना है। उसने कहा, ठहर जा, मुझे घोड़े से उतरने दे, फिर जो बात होगी बयान करना। मलकुल मौत ने कहा, नहीं, मैं तो अभी कहूंगा। बादशाह ने झुककर कहा, अच्छा कहो। फकीर ने चुपके से उसके कान में कह दिया कि मैं मलकुल मौत हूं और इसलिए आया हूं कि इसी वक्त तेरी रूह कब्ज करूं। ये सुनकर बादशाह का रंग मुतगय्यर हो गया और जबान गुंग हो गई। मुश्किल से बोला कि मुझे इतनी मोहलत दो कि घर जाकर अपने फर्जंद से मिल लूं। कहा, हरगिज नहीं। उसी वक्त उसकी रूह निकाल ली और वो घोड़े से गिर गया। दोस्तों, जहां की खाक होती है वहीं मदफन भी होता है। इस सिलसिले में चंद रवायात हैं। एक रवायत के मुताबिक हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मदीना मुनव्वरा में एक हबशी का इंतकाल हुआ तो सरवरे कायनात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, यह हबशी मदीने की मिट्टी से पैदा हुआ था और मदीने में ही वफात पाई। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि औरत के रहम पर एक फरिश्ता इस काम के लिए मुकर्रर होता है कि वो इंसानी नुतफे के बारे में खुदा से पूछता है कि नुतफा तख्लीक के काबिल है या नहीं। अगर खुदा की तरफ से हुक्म मिलता है कि तख्लीक के काबिल है तो वो अल्लाह ताला से उसके रिस्क और उम्र की तफसील दरियाफ्त करता है। इरशाद बारी होता है कि लौहे महफूज में देखो। लौहे महफूज में तमाम तफसीलात देखने के बाद वो फरिश्ता उस जगह की थोड़ी मिट्टी जहां वो मरने के बाद दफन होगा उसके नुतफे मिलाकर खमीर करता है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तजहीज में जहां की खाक होती है वहां जाने की कुदरती तौर पर उसको जरूरत पेश होती है। एक रवायत है कि मलकुल मौत एक रोज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गए। वहां उन्होंने उनके एक मसाहिब को तेज नजरों से इस तरह घूर कर देखा तो उसने हजरत से दरियाफ्त किया, ये शख्स कौन था जिसने मुझे इस तरह घूर कर देखा? उन्होंने फरमाया कि मलकुल मौत थे। उस मसाहिब ने कहा कि ऐसा मालूम होता है कि ये मेरी रूह कब्ज करेंगे। आप हवा को हुक्म दीजिए कि वो मुझे सरजमीन हिंद में पहुंचा दे ताकि मलकुल मौत यहां आए तो मुझे ना देखें। हजरत सुलेमान ने हुक्म दिया और उस शख्स को हवा ने हिंदुस्तान पहुंचा दिया। फिर मलकुल मौत आए तो आपने पूछा कि तुमने मेरे मसाहिब को क्यों घूर कर देखा था? मलकुल मौत ने कहा कि हजरत, मुझे अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ था कि इसी घड़ी हिंदुस्तान में उस शख्स की रूह कब्ज करूं। वो यहां आपके पास बैठा हुआ था। मैंने उसे देखकर सोचा कि यह हिंदुस्तान इतनी जल्दी कैसे पहुंचेगा, लेकिन जब मैं वहां गया तो उसे भी वहीं पाया और मैंने उसकी रूह कब्ज की। हजरात ग्रामी, बाज औकात ऐसा होता है कि इंसान की वफात कहीं होती है और किसी दूसरे मकाम पर दफन होता है, मगर जहां की मिट्टी होगी वहीं दफन होगा। मसलन इस दौर का एक मशहूर वाकया यही समझने के लिए काफी है कि रईसुल अहरार हजरत मौलाना मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह की वफात लंदन में वाक़ हुई और आप बैतुल मुक़द्दस में मदफून हुए। इसी तरह की बहुत सी मिसालें मिलेंगी। और जो लोग दरिया में बहा दिए जाते हैं या जला दिए जाते हैं, परवरदिगार आलम उनके मस्ख और बिखरे हुए जर्रात को जमा करने की कुदरत रखता है और मुमकिन है कि वो जर्रात जमीन के सुपुर्द कर दिए जाते हों। हजरात ग्रामी, जांकनी की तकलीफ और अजियत इंसान अपनी आंखों से देखता है कि मरने वाला कितनी सख्तियों में मुब्तला रहता है, फिर भी लोग गफलत में पड़े रहते हैं। अगर जरा भी समझ से काम लें तो यही उनकी इबरत के लिए काफी है। उलमाए रब्बानी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जांकनी से ज्यादा संगीन कोई दर्द नहीं है। अगर इंसान के जिस्म के टुकड़े कर दिए जाएं, फिर भी सकरात मौत की अजियत और तकलीफ के सामने हेच है।
शद्दाद इब्न ओस से रवायत है कि अगर कोई शख्स आरे से चीरा जाए या देग में बंद करके पकाया जाए, जहां कनी में उससे भी ज्यादा तकलीफ होती है। एक और रवायत है कि किसी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि सकरात मौत की तकलीफ कैसी होती है। आपने फरमाया कि आसान मौत ऐसी है जैसे खारदार शाह को रेशम में डालकर खींचने से कांटे के साथ रेशम टुकड़े टुकड़े होकर निकलता है। शमाइल तिर्मिजी में है कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नज़ाए रूह के वक्त इतनी सख्त तकलीफ गुजरी कि हजरत फातिमा अल ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हो देखकर रोने लगी। हुजूर ने फरमाया कि ऐसी तकलीफ कभी नहीं हुई थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाकनी के वक्त फरमाते थे, ए अल्लाह, तू मोहम्मद पर सकरात मौत को आसान कर दे। हुजूर अकरम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़ा की तकलीफ बंदाए मोमिन के लिए गुनाहों का कफ्फारा बन जाती है और काफिर को मौत के वक्त ही उसके नेक अमल की जजा दे दी जाती है। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ए हवारियो, मेरे लिए दुआ करो कि अल्लाह ताला मौत की सख्तियां मुझ पर आसान कर दे। मैं मौत से इतना डरता हूं कि खौफ के मारे मरा जाता हूं। हदीस शरीफ में यह भी वारिद है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आया तो हक ताला ने उनसे पूछा कि जां कनी में तुमने अपने आप को कैसा पाया। अर्ज किया कि जिंदा मुर्ग के मिसल कि उसे भूने तो न वो उड़ सके न मर सके कि कहीं नजात पाए। मौलाए कायनात हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए मुसलमानों, काफिरों से जिहाद करो ताकि कत्ल हो, क्योंकि तलवार की 1000 ज़रबे मुझ पर ज्यादा आसान है बनिस्बत इसके कि बिस्तर पर पड़े पड़े जांकनी हो। एक सहाबी से रवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत की तकलीफ इस कदर सख्त और संगीन होती है कि अगर उसका एक कतरा भी जमीन व आसमान पर डाल दिया जाए तो सब जमीन वाले मर जाएंगे। हजरात ग्रामी, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब हक ताला किसी मोमिन की रूह कब्ज कराना चाहता है तो मलकुल मौत के पास हुक्म भेजता है कि उस बंदे को मेरा सलाम पहुंचाना। जब मलकुल मौत आते हैं तो उससे कहते हैं कि तेरा रब तुझे सलाम कहता है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ए खुदा के दोस्त, तुम पर सलाम हो। इस घर से निकलो जिसे तुमने ख्वाहिशात नफसानी को कुर्बान करके वीरान कर दिया है, और उस घर में चलो जिसे तुमने अपनी इबादत से आबाद किया है। हजरत इब्ने जरही रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से इरशाद फरमाया कि जब मोमिन मरते वक्त फरिश्तों को देखता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं कि हम तुझे दुनिया में वापस कर दे और रूह कब्ज न कर दें। वो कहता है, क्या मुझे गम व आलाम और रंज व तफक्कुरात की जगह ले जाना चाहते हो? अब तो मैं नहीं जाता, मुझे मेरे परवरदिगार के पास ले चलो। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान के 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से उसका अमल चढ़ता है और दूसरे दरवाजे से उसका रिस्क उतरता है। जब मोमिन मर जाता है तो दरवाजे उसकी मौत पर रोते हैं। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब भी मोमिन मर जाता है तो कब्रिस्तान अपने आप को सजा लेता है और कब्रिस्तान का हर हिस्सा ये तमन्ना करता है कि ये बंदा मेरे अंदर दफन हो। एक दूसरी रवायत है कि मोमिन की मौत पर जमीन 40 दिन तक रोती है। हजरत अताउल खुरासानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बंदा जमीन के किसी हिस्से में सजदा करता है वो हिस्सा कयामत के रोज तक उसके मरने के दिन से रोएगा। मुरव्वी है कि एक अंसारी की रूह कब्ज करने के लिए मलकुल मौत आए और उनके सरहाने बैठ गए
तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखकर फरमाया कि मेरे सहाबी के साथ नरमी करो, क्योंकि वो मोमिन है। हजरत मलकुल मौत ने फरमाया, आप इत्मीनान फरमाएं और यकीन करें कि मैं मोमिन के साथ नर्म हूं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल उसके दम के वक्त ऐसी है जैसे कोई कैद खाने से रिहा कर दिया जाए और फिर आजादी के साथ हर जगह की सैर करता फिरे, और यह हाल उस शख्स का होता है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से बेरगबत और किनारा कश रहकर खुदा की याद और उससे मुलाकात की तैयारी में लगा रहता है। मौत उसके लिए महबूब हकीकी के विसाल का मुजदाए पैगाम होती है। एक तवील रवायत है जिसका खुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक जब तक बंदा मोमिन दुनिया से इंतकाल और आखिरत का सफर करने को होता है तो उसके पास फरिश्ते नुज़ूल फरमाते हैं, जिनके चेहरे हसीन व जमील और सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके पास जन्नती कफन और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहां तक उसकी नजर पहुंचे फरिश्ते बैठे हुए नजर आते हैं और उसे घेरे रहते हैं। और हजरत मलकुल मौत तशरीफ लाते हैं और उसके सराहने बैठ जाते हैं और फरमाते हैं, ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और खुशनूदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत और आसानी से निकल आती है जैसे मशकीजे में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस इसे हजरत मलकुल मौत ले लेते हैं और दूसरे फरिश्ते जो वहां दूर तक बैठे रहते हैं पल भर भी उनका साथ नहीं छोड़ते और उसे लेकर उसको जन्नती कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। इस खुशबू के मुताल्लिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जमीन पर जो भी उम्दा से उम्दा खुशबू मुश्क की पाई गई है वैसी ही खुशबू होती है। फिर फरमाया कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ने लगते हैं और फरिश्तों की जिस जमात में भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं, वाह क्या अच्छी खुशबू है। ये फरिश्ते मैयत का नाम ताजीम व तकरीम से लेकर उसका तारुफ कराते हैं, यहां तक कि पहले आसमान पर पहुंच जाते हैं और आसमान का दरवाजा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाजा खोल दिया जाता है और वो इस तरह रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं हत्ता के 7वें आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान के फरिश्ते उसे दूसरे आसमान तक रुखसत करते हैं और जब 7वें आसमान पर पहुंच जाते हैं तो अल्लाह का हुक्म होता है कि मेरे बंदे का नाम इल्लीन में लिख दो, और अब जमीन पर ही उसे लौटा रहा हूं और जमीन ही से कयामत के दिन दोबारा जिंदा करूंगा। इसके बाद ये रूह जमीन पर वापस आ जाती है और मैयत के जिस्म में दाखिल कर दी जाती है। इसके बाद 2 फरिश्ते कब्र में उसको बिठाकर सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन थे? वो इनके सही सही जवाबात देता है तो फरिश्ते कहते हैं, बेशक तू सच कहता है। इसके बाद अल्लाह की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे के लिए जन्नत का फर्श बिछा दो, उसको जन्नत का लिबास पहना दो, और उसके लिए जन्नत का दरवाजा खुलते ही रूह परवर हवा और खुशबू आने लगती है और कब्र को हद नजर तक कुशादा कर दिया जाता है। और इसके बाद मैयत के नेक अमाल एक हसीन और खूबसूरत शख्स की शक्ल में आते हैं और मैयत से उसकी रफाकत का वादा करते हैं और खुशी की बशारत देते हैं। ब्रादरान इस्लाम, इसी रवायत में यह भी है कि काफिर की मौत के वक्त सियाह चेहरों वाले फरिश्ते आसमान से आकर उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं और उसको ता हद नजर दिखाई देते हैं। इसके बाद मलकुल मौत मैयत के सरहाने बैठकर कहते हैं, ए खबीस रूह, अल्लाह की नाराजगी और गजब की तरफ निकल के चल। ये सुनते ही रूह खौफ हिरास से सारे बदन में दौड़ने लगती है, मगर तरह तरह की सख्ती से उसकी रूह जबरदस्ती जिस्म से निकाल ली जाती है और वो फरिश्ते उसकी रूह को टाट में लपेट लेते हैं। उस वक्त इस रूह में मुर्दार सड़े हुए जानवर की बदबू फूटने लगती है। फरिश्ते उसको लेकर
आसमान की तरफ परवास करते हैं और वो दरवाजा खुलवाना चाहते हैं, मगर आसमान का दरवाजा नहीं खुलता। हुक्म होता है कि इसका नाम सज्जीन में लिख दो। इसके बाद ये रूह जमीन पर फेंक दी जाती है और जिस्म में दाखिल करके फरिश्ते सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है? वो जवाब देता है, मुझे मालूम नहीं। फिर पूछते हैं, तेरा दीन क्या है? वो लाइल्मी जाहिर करता है। फिर हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक सवाल करते हैं, वो यही जवाब देता है कि मुझे मालूम नहीं। उस वक्त खुदा की तरफ से निदा आती है, मेरे बंदे ने जो कुछ कहा बिल्कुल झूठ कहा। इसके नीचे आग का बिस्तर बिछा दो और दोजख का एक दरवाजा खोल दो। दरवाजा खुलते ही दोजख की गर्मी और आग के शोले लपकने शुरू हो जाते हैं। फिर उसको कब्र इस जोर से दबोचती है कि इधर की पसलियां उधर और उधर की पसलियां इधर हो जाती हैं। फिर उसके आमाले बद एक ऐसी बदशक्ल सूरत में आते हैं कि उसके जिस्म से बदबू आती है और उसको अजाब और मुसीबत की खबर सुनाते हैं। सामईन ग्रामी, रूह कब्ज होने से पहले मैयत के सामने उसके अच्छे और बुरे अमाल पेश किए जाते हैं। नेक अमल को देखकर उसको खुशी और मसरत होती है और बुरे अमाल को देखकर सख्त रंज और अलम में मुब्तला हो जाता है। और हदीस शरीफ में वारिद है कि इंसान की मौत के वक्त शैतान सरहाने आकर बैठ जाता है और मरने वाले से कहता है, अगर तू इस सख्ती और अजियत से नजात चाहता है तो एक मर्तबा जबान से कह दे कि माज अल्लाह, खुदा एक नहीं दो हैं। वक्त मर्ग मरने वाले का कलेजा जलता है और उसको प्यास की शिद्दत होती है। शैतान कहता है, अगर तुझे पानी पीना है तो जुबान से इकरार कर ले कि इस दुनिया का पैदा करने वाला कोई नहीं है। बस अगर मरने वाला साहिब ईमान और सादतमंद होता है तो शैतान को धुतकार देता है। इसके बाद शैतान पैरों की तरफ आके खड़ा होता है और पानी से भरा हुआ प्याला नचा नचा कर कहता है कि मेरी बात मान ले, मैं तुझे पानी पिलाऊंगा। बस इतनी सी बात कह ले कि मैं रसूल अल्लाह को नहीं मानता। ये इतना सख्त इम्तिहान का वक्त होता है कि अगर मरने वाला बाईमान है तो शैतान का कहा नहीं मानता, और अगर वो अरबाब शकावत और बदबख्तों में से है तो शैतान के हाथ से पानी का प्याला पीकर जहन्नम का मुस्तहक बन जाता है। रवायत है कि जिस वक्त अबू जकरिया जाहिद की मौत का वक्त करीब आया और जाकनी का आलम हुआ तो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके पास गईं और उनको कलमा शहादत की तलकीन फरमाई तो उन्होंने कलमा सुनकर मुंह फेर लिया। इसी तरह दूसरी बार भी कलमा सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार सुनकर साफ इंकार किया कि मैं नहीं कहूंगा। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा को इतना सदमा हुआ कि आप बेहोश हो गई। कुछ देर बाद आपको होश आया तो अबू जकरिया जाहिद को भी इफाका हुआ और उनके हवास कुछ बजा हुए। पूछा, तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था? हजरत सिद्दीका ने फरमाया कि मैंने तुम्हें 3 मरतबा कलमाए शहादत की तलकीन की, 2 दफा तो तुमने सुनकर मुंह फेर लिया और तीसरी बार इंकार किया। हजरत अबू जकरिया जाहिद ने जवाब दिया कि शैतान मेरे पास पानी का भरा हुआ प्याला लेकर आया था और मेरी दाहिनी तरफ खड़ा होकर बोला, पानी पियोगे? मैंने कहा हां। शैतान ने कहा, अच्छा यूं कहे कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बेटे थे। उधर भी उसने यही बात कही। मैंने फिर उसकी तरफ मुंह फेर लिया। तीसरी बार शैतान ने कहा, अच्छा ला इलाहा कह ले। मैंने उसको डांट कर जवाब दिया, मैं नहीं कहूंगा। ये सुनकर शैतान ने पानी का प्याला जमीन पर फेंक दिया और फरार हो गया। सामईन हजरात, अब जरा कब्र के हालात पर गौर फरमाइए। हुजूर पुरनूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है तो कब्र उससे कहती है कि ए बदबख्त, खराब हाल इंसान, तू मुगालते और धोखे में रहा। मुझ पर शान से अकड़कर और तनकर चलता था। तुझको ये मालूम नहीं था कि मैं इम्तिहान और आजमाइश का घर हूं। मैं तन्हाई और हैबत और जुल्मत का मकाम हूं जहां सिर्फ कीड़ों की बहुतात है। तूने मेरी परवाह ना की। बस अगर मरने वाला नेक होता है
تو اس کی طرف سے کوئی جواب دینے والا کہتا ہے کہ اے قبر تو دیکھتی نہیں کہ یہ اچھی باتوں کا حکم کرتا تھا اور لوگوں کو بری باتوں سے روکتا تھا. پھر قبر یہ سن کر کہتی ہے اچھا یہ اگر ایسا تھا تو اس کے لیے